اور اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل جو سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا بیئر مور فروٹ، بہت سا پھل. اور میں چاہوں گا اس کے ساتھ ہم حوالہ خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے. یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 8ویں آیت. خدا کے کلام میں یہ لکھا، سنیے: میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. اور ایک اسی کی آیت میں چاہوں گا کہ آپ نکالیں 16ویں آیت. یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 16ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ریفرنس کے طور پر لیجیے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر، بولیے ساتھ، پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائیے. آئیے ہولی اسپرٹ کے لیے، پاک روح کے لیے زوردار تعریف جا کر خدا کے نام کو جانیں. بہت کم تعریف، بہت کم تعریف. پاک روح کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے زوردار تعریف جا کر خدا کے نام کو جا دیں. ہاللویا، ہاللویا. بہت کم آواز. بولو خداوند یسوع مسیح کی، شیطان کی، شیطان کی. شکریہ. مچ فروٹ کے تعلق سے، بہت سارا پھل کے تعلق سے آج خدا کے کلام میں سے بیان کرنے کو ہوں. فلنس کی سیریل یہاں پر ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. معموری گلاس کے اندر پانی اگر ہاف ہوگا تو اسے فل نہیں کہا جا سکتا، اور جیسے جیسے اس کا لیول بڑھے گا آپ پانی ڈالتے چلے جائیں گے، وہ اوپر تک آتا چلا جائے گا. اور جب تک پانی گر نہیں جاتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فلنس ہے. اور جب آپ پانی ڈالتے چلے جائیں گے اور جب وہ اس میں سے نکلتا ہوا باہر آ جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر فلنس، وہ بھرا ہوا گلاس باہر گر رہا ہے. اسی طرح آسمان پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو آسمان پر آپ کو آسمان جو ہے وہ ستاروں سے بھرا پڑا نظر آتا ہے. رات کے پہر ستارے ہی ستارے، جھلمٹ ستاروں کا. اس کا مطلب آسمان ستاروں سے معمور ہے. سمندروں دریاؤں کے اندر پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے وہ سمندر دریا جو ہے وہ پانیوں سے فل ہیں. اس کا مطلب اس کی فلنس ان کے اندر پائی جاتی ہے. میری اور آپ کی زندگی کے اندر فلنس نہیں آ سکتی تھی، نہ کبھی آئے گی، مگر ایمانداروں کی زندگی میں فلنس آتی چلی جائے گی. دنیا کے لوگ یہ فلنس کو نہیں حاصل کریں گے. خدا کی ذات جو ہے وہ فلنس سے بھری ہوئی، اور اگر کسی چیز کے اندر آئی ہے تو وہ خدا کے بیٹے کے اندر، کیونکہ خدا کا بیٹا خدا سے نکلا ہے. اور ہماری جو کی ورڈز ہے، ہماری جو آیت ہے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یہ خدا کی ذات کے اندر سکونت کرتی ہے. کلسیوں دوسرے باب کے اندر 9ویں آیت کے اندر کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یعنی خدا کی جو ذات ہے، خدا کا جو علم ہے، خدا کا جو نالج ہے، خدا کے اندر جو خدائی ہے، وہ اس کے بیٹے کے اندر ہے. بولیے آمین. یہ فلنس خدا کے بیٹے کے اندر. اور اگر فلنس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے بیٹے کے ذریعے سے، وہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ملے گا. حالانکہ خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آیا پھر بھی فلنس ہمارے اندر نہیں تھی. ہولی اسپرٹ جب آیا تو مسیح سے لے کر اس نے ہمیں کیا کی؟ فلنس دی ہے. وہ نالج دیتا ہے، وہ کلام کی گہری باتیں، خدا کی ذات کی باتیں ہم پر کیا کرتا ہے؟ عیاں کرتا جاتا ہے مسیح سے لے کر. تو تبھی ہماری زندگی کے اندر فلنس آ رہی ہے. ہم روز بروز کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ معمور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فلپ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے گلاس کا لیول پانی ڈالتے چلے جائیں وہ بڑھتا بڑھتا باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح خدا کی ذات ہماری زندگی کے اندر اس طرح بڑھتی چلی جائے، یہ لیول بڑھتا چلا جائے. آمین. لہٰذا میں نے بتایا ہر چیز فلنس کو شو کرتی ہے. خدا نے انسان کو جب بنایا بھی تو کہا معمور و موقوف کر دو دنیا کو، تاکہ معموری لاؤ. لیکن انسان گناہ کے اندر پڑ گیا، معمور نہیں ہو سکتا تھا، دور ہو گیا. حالانکہ معمور ہو جانا تھا. خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان کو نالج دے رہا تھا، اپنی خدائی کا علم دے رہا تھا. وہ معمور ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر انہوں نے سن کیا، گناہ کیا، پھر وہ دور ہی ہوتے چلے گئے.
वो फुलनेस से दूर होते चले गए। फिर उसका बेटा आया, पाकरू होली स्पिरिट आया, उसने आकर हमें दोबारा बहाल करना शुरू किया। हालेलुया। आइए पाकरू के लिए जोरदार तालियां जाकर। हालेलुया। जैसे आसमान सितारों की झिलमिट से मामूर है, पानी समुद्रों के अंदर मामूर है, इस तरह भाइयों दरख्तों के ऊपर जब हम आते हैं तो दरख्त जब फलों से लदे हों, इसका मतलब है दरख्तों के अंदर मामूली पाई जाती है। बोलिए आमीन। अब जाएं बागों के अंदर, बागों के अंदर कभी गए हैं? शौकिया तौर पे चले जाना, और नहीं लिया जाए। महक शायद जाए, महक क्या नाम, शहर 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 नहीं देखे तुम, पिंडा से गए ना, सब जाते हैं। हाँ देख, तो अब जब उनको देखते हैं तो वो भाई दरख्तों के ऊपर फल ही फल नजर आते हैं। दरख्तों के ऊपर क्या नजर आता है? फल नजर आते हैं, फ्रूट से भरे होते हैं। आजकल तो आम का दरख्त पौधा आपको फल ज्यादा नजर आता है, आम नजर आता है, अमरूद नजर आता है, बनाना नजर आता है, केला। इसके अलावा और क्या है बताएं? हाँ सेब, हाँ सेब, यस। इसके अलावा आड़ू, हाँ जी, और क्या? मैंगो, मैं बोला इंग्लिश में, आप बोल दिए, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा और क्या? ऑरेंज, अंगूर, हाँ जी, ऑरेंज तो ये भी है। हाँ सैम, ऑरेंज तो नहीं लगा, नहीं, ग्रेप्स, हाँ ग्रेप्स है। तो ये जो आप देखते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो फल ही फल आपको नजर आते हैं, मगर जब दरख्तों पे गौर करते हैं तो दरख्त जो होते हैं वो फलों से भरे होते हैं। इसका मतलब है वो फलों से वो फलों से क्या है? ममूर पौधे हैं, वो फलों से भरे हुए हैं। लिहाजा मुझे और आपको जो है ममूरी के अंदर आना। खुदा कहता है, खुदा हमारी जिंदगियों में क्या तलाश करता है? फल तलाश करता है। क्या ढूंढता है? तो फल तो दरख्तों के ऊपर होते हैं, हम तो इंसान हैं, मगर फल जो होता है किसी चीज का, फल जब होगा तो उसका, उसे कहते हैं रिजल्ट है उसका। फ्रूट जो होता है, फल जो होता है किसी चीज का भी होता है, वो उसका रिजल्ट होता है। जैसे पेट का फल, जनरेशन के ताल्लुक से, नस्ल जब होगी तो हम कहेंगे पेट का फल। और दरख्तों का जो फल होगा, जैसे दरख्त आम का है तो फिर उस पे ऊपर क्या लगेगा? आम ही लगेंगे, ठीक है ना, वो आमों से भरा होगा। सेब का दरख्त है तो सेब से वो भरा होगा। और इसी तरह ये जो फुलनेस है भाइयों, ये फल जो है, फ्रूट जो है, ये खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में चाहता है। खुदा हमें इन दरख्तों की मानद लेता है, हमारी जिंदगियों से फल तलाश करता है। फल हमारी जिंदगी फ्रूटफुल हो, जैसे दरख्त फलों से लगे होते हैं। खुदा चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी पे क्या लगे? फल लगे। तो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो फल लगेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने लिखा है कि बेल लाया, वहां से एक शाख लाया, कहां से? मिस्र से। लिखा आकर उसने उनके कनान के अंदर लगा दी, और उसने जब वो लगाई है शाख अंगूर, लिखा है वहां पर आकर, लिखा पत्थर निकाले उसने, यानी गैर कौमों को वहां से निकाला, दफा दूर किया, और वहां पर आकर लिखा इजराइल को, वहां पर ताक एक लगाई, ताक इजराइल को कहा गया। लिखा वहां से मिस्र से लाया और आकर उनके कनान के अंदर वादे की सरजमीन के ऊपर आकर उसने लगा दी वहां पर। लिखा सबसे पहले पत्थरों को हटाया, क्योंकि पत्थर जो होते हैं ना वो बीज को बढ़ने नहीं देते ना, नरम जमीन जो होती है बीज वहां पे बढ़ता है। पत्थरों को हटाया, गैर कौमों को वहां से हटाया, दफा दूर किया, और आकर लिखा बेल वहां पर लगाई, वहां पर शाखे अंगूर वहां पर लगा दिया। और खुदावंद के कलाम लिखा, खुदा ने उसके इर्द गिर्द एक बाड़ बनाई, दीवार बनाई मजबूत, ताकि दुश्मन ना आ सके, यानी जानवर आकर उसको बर्बाद ना कर सके। तो जंगली जानवर होते हैं, वो फसलों को तबाह कर देते हैं। तो खुदा ने लिखा बाड़ भी बनाई उसकी, फिर कोल्लू भी बनाया, ताकि जो ग्रेप्स आएगा, मिलेगा फ्रूट, उसको ग्रैंड किया जाए। और देखिए खुदा की जात क्या चीज है। वहां पर कोल्लू भी बनाया जहां से ग्रैंड होगा फ्रूट। और फिर लिखा वहां पर एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाया, जहां पे लिखा है कि वहां पर निगाहबान जाकर अपनी फसलों का ध्यान रखता है कि कोई आकर जानवर फसलों को तबाह ना कर दे। बुर्ज भी बनाया। देखिए खुदा की जात।
लिखा है खुदा ने इतना कुछ किया, मगर लिखा है वहां पर जंगली अंगूर लग गए। अब खुदा ने लगाए हैं भाइयों, तो जंगली अंगूर वहां पे लग गए। खुदा तो लिखा वहां पर ताक लाया अंगूरों की, और वहां पर खट्टे अंगूर लग गए उन ताकों के ऊपर, जंगली अंगूर। तो खुदा कहता है मैं आकर फिर इस फसलों को, इस शाखे अंगूर को बर्बाद कर दूंगा, इस सारे खेत को, कि मैंने तो सही फसल लगाई, अंगूर लगाए, शाखे अंगूर लगाया। और ये कंसेप्ट, ये जो थे, इसको इजराइल कहा गया है। खुदा मिस्र से इजराइल को वहां पर लाया ताकि वो फ्रूटफुल हो, फल दे, मगर वो जंगली फल देने लगे। जंगली फल से मुराद है वो गैर कौमों की प्रस्तुत करने लगे, मबूदों की बुत प्रस्ती करने लगे, जादूगरी करने लगे, गैर मबूदों के पीछे भागने लगे। इसका मतलब ये जंगली अंगूर उन पर लगे, दुनियादारी उनके अंदर छा गई। जिंदा खुदा को छोड़कर वो गैर मबूदों की, बुतों की प्रस्तुत करने लगे, तो जंगली अंगूर लगा। खुदा कहता मैं इस सारे खेत को बर्बाद कर दूंगा। तो खुदा ने देखिए कि फिर उन पर सजा अदालत की, जजमेंट उनकी की, और वो गैर कौमों के हाथे चढ़ गए। गैर कौमों ने उन पर बड़ा जुल्म किया। तो खुदा तो भाइयों अच्छा अंगूर लगाता है, मगर वो दरख्त जो थे, वो बेल जो थी, शाखे अंगूर जो थी, वो खट्टे अंगूर, जंगली अंगूर लगे। तो खुदा ने फिर उस खेत को बर्बाद कर दिया। भाइयों खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में फ्रूट चाहता है। अगर फ्रूट नहीं होगा तो फिर अदालत होगी, जजमेंट होगी, फिर सजा मिलेगी, फिर मुसीबत के अंदर पड़ेंगे, मुश्किल के अंदर पड़ेंगे। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? फल तलाश करता है, ढूंढता है। और खुदा कहता है कलाम के अंदर, यूहन्ना यहाँ पर बयान क्या कर रहा है कि मेरे बाप का जलाल, यीशु मसीह कहता है मेरे खुद बाप का जलाल, यहोवा का जलाल किससे है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आइए जोर देता लीजिए हालेलुया। बाप का जलाल, खुदा का जलाल, यहोवा का जलाल बेटे से है। और बेटा क्या कहता है? मेरे बाप का जलाल इससे है कि हम फल लाएं, और थोड़ा नहीं फल लाएं, देखिए बहुत सा फल लाएं। आमीन। इसमें थोड़ा फल भी लाते हैं लोग, इसका मतलब फसलों में थोड़ा फल भी आता है। इजराइल के अंदर ये थी बात कि जब वो अपने बाग लगाते थे तो फल जब तोड़ते थे तो कुछ फल रहने देते थे ताकि परदेसी आकर क्या करें, उनको खा सके। तो परदेसी आकर थोड़े से फल को जो लगा होता था वो खा लेते थे, गुजरता था। जब वो खेत के अंदर फसल आते थे तो पोले जब काटते थे तो जो गिरते थे उनको नहीं उठाते थे। खुदा का ऑर्डर था कि उनको नहीं उठाना, जो गिर गए हैं उनको गिरे रहने देना। गरीब आकर क्या करते थे, उनको चुग लेते थे। आप देखिए रूत के ताल्लुक से लिखा है, रूत ने बाइबल में लिखा है कि जब वो फसल काट रहे थे तो फिर पोले वहां से लिए और वो चुग रही थी और गुजर बसर कर रही थी। अब गरीब औरत थी रूत, और लिखा है चुग रही है उन पोलों को। क्या वो चुग रहे हैं, चुगती चुगती लिखा है कि उसकी नस्ल से क्राइस्ट जाकर पैदा हुआ। वो ममूरी तक गई है, थोड़ी सी बरकत से वो भैया ममूर होती होती यहोवा को पहचान गई, फिर क्राइस्ट तक पहुंची, उसकी नस्ल से क्राइस्ट पैदा हुआ। लिखा उससे अबेद पैदा हुआ, अबेद से लिखा है नस्लों में जाकर क्राइस्ट पैदा हुआ। वो ममूरी तक पहुंच गई, थोड़े थोड़े से वो ममूरी तक। भाई थोड़ा फल है मगर ममूर तो हो, रूत की तरह थोड़ा थोड़ा से है, गरीब है मगर फल लाते चले जाए। और फिर वो ममूरी तक गई, उसकी नस्ल से क्राइस्ट जो ममूर कहता है वो पैदा हुआ। और हम गरीब रह जाए, सारी जिंदगी पोले ही उठाने हैं। भाई खुदा हमसे थोड़ा फल नहीं चाहता। लिखा मेरे बाप का जलाल इससे है, बोलिए आसिया, कि बहुत फल लाए, थोड़ा सा नहीं फल। हालांकि थोड़ा सा जो फल ला रहा है वो भी क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है ना। लिखा जो डाली मसीह के साथ जुड़ी हुई है वो फल लाती है। आमीन। हम सब मसीह के साथ जुड़े हुए हैं ना, मसीह पर ईमान रखते हैं। वो अंगूर का हकीकी दरख्त, हम उसकी बोले डालियां, बोलिए क्या है? लिखा वो अंगूर का हकीकी दरख्त और हम उसकी डालियां। बनी इजराइल के लोग तो जंगली अंगूर लाए, खट्टे अंगूर लाए, मगर मसीह जो लिखा है वो खट्टे अंगूर नहीं लाया,
ला नहीं सकता, जंगली अंगूर नहीं ला सकता मसीह, क्योंकि वो यहोवा खुदा से निकला है, बाप से निकला है। आमीन। वो तो बाप की परस्तिश करता है, गैर कौमों की परस्तिश नहीं करता, गैर मबूदों की परस्तिश नहीं करता, बल्कि वो खुदा से निकला, वो यहोवा खुदा का बेटा इबादत करता है। इसलिए वो अंगूर का हकीकी दरख्त हकीकी फल लाता है, मीठा फल लाता है। मगर इजराइल गैर कौमों के पीछे चलेगी, उनकी परस्तिश करने लगी, जंगली अंगूर लाए, खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया। आज तक धक्के खा रहे हैं। बहाल तो कर देता है खुदा की मोहब्बत कितनी है, फिर भी बहाल कर देता है, थोड़ा फल लाता है, फिर भी उनसे प्यार करता है। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा, मसीह कहता है मेरे बाप का जलाल इससे है कि बहुत, बोलिए क्या लाए, बहुत फल, बहुत सा फल लाए, कम नहीं। हालांकि हम मसीह के साथ जुड़े हैं, थोड़ा फल भी लाने वाला शख्स मसीह के साथ ही क्या है, जुड़ा हुआ है। थोड़ा फल लाने वाला कहां से जुड़ा, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मसीह के साथ ही जुड़ा हुआ है। मगर जो फल ला ही नहीं रहे, आप कहें मसीह के साथ भी जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ भी जुड़े हैं, मसीह के साथ डाली जुड़ी हुई है, मसीह को कबूल किया मगर फल नहीं ला रहे, तो आप देखिए उनकी लाइफ कैसी होगी, वो कैसे भी डाली। लिखा है दरख्त से डाली जब कट जाती है तो वो भाइयों कायम नहीं रहती। जो डाली मसीह के साथ जुड़ी है, लिखा है कायम रहती है। क्या कहती रहती है, तो जो कट जाती है लिखा है वो सूख जाती है और आग में जलाने के काम आती है। कटे हुए हैं तो फिर जलाए जाएंगे, अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कायम रहेंगे और बहुत सा फल लाएंगे। इस बात के लिए जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप का जलाल इससे है कि बहुत सा फल मैंने और आपने लाना है। दरख्तों की लिखा, दरख्तों के ऊपर कुहाड़ा रख दिया गया है। जो फल नहीं लाता वो काटा जाता है, जो फल लाता है खुदा उसे छांटता है। उसे क्या करता है, ताकि ज्यादा, बोलो ना, ज्यादा छांटी का जो प्रोसेस है ये बड़ा मुश्किल होता है। छांटी का जो होता है, बाइबल में लिखा अपने बच्चे को छड़ी से मारेगा वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तुझे जहन्नम की सजा से बचा देगा। आज जब हम किसी को तंबी करते हैं, मैंने बड़े लोगों की तंबी की, कुछ लोग ठहर जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, बड़े बड़े लीडरों की नजर नहीं आते आज मेरे साथ, क्योंकि तंबी जो तकलीफ दी होती है, जब वो चलते हैं ना तो उनको तंबी की जाती है, बेटा ये नहीं करना, लेट नहीं आना, तो लीडर है, लेट आएगा तो फिर आप खुद ही सोचें, जब उसे कहेंगे वो चिढ़ खाएगा। तो जो जुड़ी हुई है मसीह में कायम है, वो वही परवाह नहीं करती, वो तो खुदा की वर्शिप करेगी, वो तो पहुंचेंगे यहाँ, क्योंकि उसने लाना है फल, थोड़ा नहीं, मच फ्रूट, बहुत सा फल उसे लगना है। ये जो होता है ना भाइयों, ये बड़ा तकलीफ दे मंजिल होता है। जब दरख्तों की कटाई की जाती है, उसके सारे, जब काटा जाता है दरख्त तभी फल लाता है, जो काटा नहीं ना जाता वो कम फल लाता है, वो फल कम लाता है। इसलिए खुदा जो है टहनियों को भाइयों काटने दिया जाए करें। जब कोई नसीहत देता है खादम, तरबियत की जाती है, तो फिर उसका गुस्सा नहीं करना। वो कहते लो जी मेरे नहीं गल कर, पादरी ने मेरे कलाम कस्या होता है, या मैनू ही कहना, किसी और नहीं कहना। तो हम कहते हैं भाई, दलेरी के साथ कहते हैं, ताकि कम नहीं फल, बहुत सा फल हमें लगे। आमीन। दरख्तों की जड़ों पे कुहाड़ा रख दिया गया है, जो फल नहीं लाएगा खुदा काट डालेगा, और जो फल लाएगा खुदा के कलाम लिखा है वो उसे तराशेगा, काटेगा उसे साइडों से, ताकि बहुत फल लाए। मैं बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा सख्त रवैये से भी बोलता हूँ, कई दफा, ज्यादा नहीं, मजबूर होकर बोला जाता है, तो कहने का मतलब ताकि ये बंदा बच जाए, ताकि ये खुदा की हुजूरी में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे नई चर्च में आते हैं, फिर मैं थोड़ा सख्त रवैया भी पेश करता हूँ, वो कुछ तो चले जाते हैं, कुछ आते हैं। इसलिए लिखा है कि जो मसीह के साथ डाली जुड़ी हुई है वो कायम रहेगी, जो नहीं जुड़ी हुई टूट जाती है, वो दुनिया के अंदर चले जाते हैं। लिहाजा खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने कहा, बोलिए मेरे बाप का जलाल इससे है कि बहुत सा फल लाने के लिए भाई छांटी करवानी पड़ेगी, तरबियत तो लेनी पड़ेगी, छड़ी का इस्तेमाल करेगा खादिम, कलाम के जरिए से आपको तरबियत दी जाएगी, आपको लेना होगा ये छांटी का प्रोसेस, तभी तो फल लाएंगे।
तुम कम फल लाएंगे। और किसी की जिंदगी में तो फल होता ही नहीं दोस्तों की। कभी मैं मसीह में जुड़े, झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, मसीह के साथ जुड़ा हो फल ना लाए, ये कैसे पॉसिबल है? देखा जो डाली मसीह के साथ है वो फल लाती है, और थोड़ा फल नहीं, बहुत सा फल लाती है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में फल तलाश करता है। फल नहीं है तो बेफल डाली को वो काट डालता है ताकि आग में डाली जाए। इसलिए हमें क्या करना है? फल लाना है। हमें क्या करना है? मेरे बाप का जलाल इससे है कि बहुत सा फल लाए, और ये फल लाना इसका मतलब ममूरी की तरफ जाना है। रोज रोज क्या करना है? ममूर होना, फलदार जिंदगी हो, फ्रूटफुल जिंदगी हो। हर बरकत वही मेरी और आपकी है। दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो भी खुदा आपको देगा, आसमानी चीजों की तलाश में लेंगे। इसलिए क्या, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, रास्तबाजी, तो ये दुनिया की सारी चीजें, आसमानी सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। मेरे बाप का जलाल इससे है कि तुम बहुत सा फल लाओ, थोड़ा नहीं, बहुत सा फल। हमारी जिंदगी से खुदा फ्रूटफुल देखना चाहता है ताकि हम फ्रूटफुल रहें, ज्यादा फल लाएं और खुदा के नाम को जलाल दे। इस काम की वजह से खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं चाहूंगा आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए।